Here are three left parts of question number 2, D, E and F parts. We have completed part A, B and C. Now again the concept is same. जो आपको मैंने कल बताया था same concept है. When you have exterior angle that is made up of two interior opposite angle. इस 120 के साथ जो एंगल बनेगा अंदर इसके opposite two angles लेने हैं. अगर मैं ये 120 को क्लिक कर दूं तो ये एंगल बनेगा. ये नहीं लेना, इसको छोड़ देना और इसके सामने वाले दोनों एंगल्स लेने हैं. तो ये 120 किससे बना है? इन दोनों एंगल से. ओके, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ एंगल 1 लिख सकते हो आप, 2 करके नेम कर लो, 3 करके कर लो. दैट एंगल 3 is equal to 1 plus 2. इस तरह से भी लिख सकते हो और जैसे कल लिखा था वैसे भी लिख सकते हो. ओके, वो कैसे लिखा था? यूजिंग एक्सटीरियर angle property. So by using exterior angle property, we know angle 3 should have 1 or 2 equal होगा. That means angle 120 is equal to 60 plus x. Now we need the value of x. So we will shift this 60 on other side. So my value for x is equal to 60 degrees. Is it okay? Next part E. I have shared answer key with you today, okay, of question number 1. So kindly check your answers from answer key. Now here again, using exterior angle property, 80 degree is equal to 30 plus x. Exterior angle है ये 30 और x से बना है. So आपको x की वैल्यू चाहिए. We will shift this 30 on other side and what you get? X angle as 50 degrees. Same way part F, and again you will write using exterior angle property. Okay, and here exterior angle is 75 and it is made up with two interior opposite angles, that means 35 and x. So find value of x, you will shift 35 on the other side and that is equal to 40 degrees. I hope it is clear to you. Yes, you are right, Herman. It is 40 degrees. Okay? Complete it, hurry up. Be quick. I hope you have completed it. Now, your next topic for third exercise, that is angle sum property. And what is that? If you have one triangle and you know that three angles are made within one triangle. Okay? अगर तीन angles बनते हैं, उन तीनों angles को आप plus कर दोगे, you will always get 180. चाहे वो same triangle हो, चाहे equilateral हो, या फिर वो आइसोसेलेस से तीनों एंगल्स को प्लस करोगे 180 ही आएगा इन एवरी ट्रायंगल, जो भी ट्रायंगल होगा. ओके, सो व्हाट इज द नेम प्रॉपर्टी नाउ? नेम ऑफ प्रॉपर्टी इज एंगल सम प्रॉपर्टी. व्हाट इज द स्टेटमेंट फॉर दैट? सम ऑफ ऑल एंगल्स, और ये अंदर वाले एंगल्स की हम बात कर रहे हैं. ओके, बाहर वाले नहीं. जैसे आपने देखा है कि बाहर भी एंगल्स बनती हैं ट्रायंगल की. All angles of a triangle is 180 degrees. सारे एंगल्स को प्लस कर दो, then sum will be 180 degrees. Okay? So इसी के बेस पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. अब प्रीवियस वाला भी आपका यूज होगा कंसेप्ट और ये नया कंसेप्ट भी यूज होगा.
प्रीवियस क्या था, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब एक्सटीरियर एंगल और सम ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी, ये दोनों का मिक्सचर होगा थर्ड एक्सरसाइज में। ओके, कंप्लीटेड, हरी आप। First three parts will be for your homework. We will be doing part 4, 5 and 6 of question number 1. देखिए, question number 1, find the value of unknown angle, या फिर जो वहां लिखा है x लिख सकते हो, find the value of x here. x का measure कितना होगा? I will quickly tell you how will be you doing your question number 1 first three parts. If you see here, यहाँ तीन एंगल्स हैं, है ना, 50, 60 और ये x. अब इसमें से एक एंगल मिसिंग है एंड यू नो दैट सम ऑफ एंगल्स इज ऑलवेज 180 डिग्रीज. तो अब आप क्या करोगे, 180 में से दोनों एंगल्स माइनस कर दीजिए. इट इज 110. 110 को 180 से माइनस करिए, योर एंगल विल बी 70. हियर इफ यू सी, यहाँ पे दो एंगल्स मिसिंग है, ये 30 है, बट यहाँ एक स्क्वायर फॉर्म्ड है. अगर स्क्वायर फॉर्म्ड है दैट मींस इट इज रिप्रेजेंटिंग 90 डिग्री. नाउ दिस इज 90, दिस इज 30, टोटल इज 120 एंड व्हाट विल बी द मेजर ऑफ x? 180 से माइनस करिए, इट विल बी 60 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन, here x is missing and again two angles are given. इन दोनों को add up करिए, it is 140. Subtract that from 180 and you get this value of x. Now we are going to do part 4 on the board and here two angles are missing और दोनों पे ही x लिखा है. That is why I have chosen this question for you. दोनों पे जब x लिखा है तो कैसे करोगे आप? This is part 4 of question 1 and triangle is made like this. Here this is x, this is also x and this angle is equal to 50 degrees. Now nothing is to be done. जैसे मैंने आपको बताया है, आप ये प्रॉपर्टी यूज करिए, sum of angles of a triangle, and we know that is equal to 180 degrees. आप इसको 1 2 3 करके भी लिख सकते हो, थीटा भी लिख सकते हो, 50 plus x, ठीक है? 50 plus x is equal to 180 degrees. That means ये 50 की shifting करवा दीजिए इधर. X plus x is equal to 180 minus 50, that is 130. Now ये x और x, if you see here, इसके साथ कोई भी न्यूमरल नहीं लगा हुआ, ठीक है? जहाँ कुछ नहीं होता उसके साथ हमेशा 1 मल्टीप्लाइड होता है. This is also 1x. 1x and 1x will be 2x. दो बार x आ रहा है, अगर एडिशन में हो तो उसको आप ट्वाइस लिखोगे. अगर यहाँ 2x और 1x होता ये 3x हो जाता. ठीक है? अब 1x and 1x 2x. अब इसके साथ क्या हो रहा है, जहाँ कोई सिंबल नहीं है, दो टर्म्स के बीच में अगर कोई सिंबल ना हो तो वहाँ मल्टीप्लिकेशन होता है. ठीक है? वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हिडन होता है अगर दो नंबर्स के बीच में कोई साइन नहीं है. ठीक है? तो ये 2 और x में कोई साइन नहीं है, दैट मींस ये दोनों क्या है, मल्टीप्लाइड है एक दूसरे से. So you will write here 130 over 2. That means x will be 65 degrees. आप अपना आंसर चेक कर सकते हो. 65 and 65, 60 60 70 और 30 हो गया 130. सॉरी 60 60 120 and 130 plus 50 is 180 degrees. अब वापस जो आपका आंसर आ रहा है उसको वहां रिप्लेस करके चेक कर सकते हो क्या मेरा ये पूरा ट्रायंगल जो है वो सब 180 ही दे रहा है. ओके, सो दिस इज योर पार्ट 4. लेट अस मूव फॉर पार्ट 5 नाउ.
अब यहाँ तीनों पे x लिखा है, दैट मीन्स ये जो तीनों क्वेश्चन है, जो तीनों क्वेश्चन सॉरी तीनों एंगल्स हैं ये सेम है, दैट मीन्स जो भी एक का मेजर आएगा वही दोनों का होगा। जैसे यहाँ 65 आया तो ये 65 इन दोनों एंगल्स के लिए सेम आंसर है, क्योंकि दोनों में ना x लिखा है, ये भी 65 है, ये भी 65 है। जो भी आंसर यहाँ आएगा x की वैल्यू आप फाइंड करोगे वो तीनों के लिए रहेगी। ओके, सो इस क्वेश्चन में अगेन यू कैन राइट द प्रॉपर्टी, we know sum of angles of a triangle is 180 degrees. That means x plus x plus x is equal to 180 degrees. Okay, x or x. Three times we have x. 1x, 1x and 1x. That means 3 times x is equal to 180 degrees. Again, nothing is there between two. ये दोनों जो टर्म्स हैं इनके बीच में कुछ नहीं है, ये नंबर है और एक वेरिएबल है, दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, दैट मींस मल्टीप्लाई हो रहे दोनों एक दूसरे से। तो आप ये 180 के नीचे इसको शिफ्ट कर दीजिए, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, ये शिफ्टिंग करके डिवीजन हो जाएगा, इट विल बी 60। दैट मींस ये जो तीनों एंगल्स हैं ये 60 ईच। ओके, three angles are of measure 60, 60 and 60 and 60, it is 180. Now is question number 1 part 6. Yes, again we are going to do angles and property in angle, because यहाँ अंदर के एंगल्स की बात हो रही है, ट्रायंगल और ट्रायंगल हम बात कर रहे हैं, सो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे इस क्वेश्चन में, अगेन एंगल्स एंड प्रॉपर्टी एंड सम ऑफ एंगल्स of a triangle is equal to 180 degrees. Now sum of angles. यहाँ देखो ये x given है, another is 2x, but what for this third angle? यहाँ again एक square draw है, right angle represent करता है, that is why we will write here 90 degrees. Okay, and this is equal to 180 degrees. Now this is 1x, this is 2x. 1x and 2x, it will be 3x now. 1x and 2x is 3x plus 90 is equal to 180 degrees. Now you can shift this 90 on the other side. It will be 180 minus 90 is equal to 90. Now 3x is equal to 90. Again 3 is multiplied with x here. So we will shift this 3 on other side and it will be divided. Divide हो जाएगा. That means x measures 30 degree. अब x का measure 30 है. आपको ये दोनों एंगल्स बताना है कितने की हो जाएंगे. जहाँ x है वो 30 हो गया. जहाँ 2x है वो कितने का हो जाएगा. ये एंगल. This will be 2 multiplied 30, that means 60. ओके, गॉट इट. फर्स्ट जो आपका एंगल है वहां x ही लिखा है, सो वी विल राइट 30 हियर, बट फॉर द सेकंड जो यहाँ एंगल बना है यहाँ 2x लिखा है, दैट मींस ट्वाइस ऑफ x यू हैव टू टेक, डबल ऑफ x. ओके, अब डबल लेना है, दैट मींस 30 और 30 दो बार हो गया ये 60. Is it clear? Anyone having doubt can raise the hand. If any student is having doubt, he or she can raise the hand. Otherwise, I have seen that you are writing your answers. आप आंसर्स लिख रहे हो, गुड. बानी मैम देखना, बानी ने हैंड रेज किया है. हाँ जी.
बेटी आपकी आवाज नहीं आ रही है बानी, यू आर सो, आपकी बहुत कम आ रही है आवाज बेटा, या तो जोर से बोलो। आप, हाँ जी, हाँ एक्सटीरियर एंगल दिया होगा, वो अगले क्वेश्चन में आएगा बेटे, वो अभी क्लियर कर देती हूँ बेटे, अभी क्लियर हो जाएगा जब नेक्स्ट क्वेश्चंस करोगे, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल के क्वेश्चंस अभी आगे आने वाले हैं। जब एक्सटीरियर एंगल दिया होगा वो क्वेश्चंस अभी आने वाले हैं। ओके, सो वेट। पूछना है बेटा कुछ आपको? हाँ जी, हाँ जी मैम, कर दो मैम अनम्यूट। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, यप, हाँ जी, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछ रहे हो 50-50 और एक्स वाला। इसमें बेटे दो एंगल्स गिवन है आपको, ये 50 दिया है, ये एक्स दिया है और ये एक्स दिया है, तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है 180, तो 50 प्लस एक्स, तीनों को प्लस कर दो, 50 प्लस एक्स 180 के इक्वल लिखो, 50 की शिफ्टिंग करवा दो, तो ये बन जाएगा 2x इक्वल टू 130, और वहां से आपको x की वैल्यू मिलेगी। ठीक है तनवीर, जहां पे भी x गिवन है वहां आपको उनको एड अप कर देना। यस, हाँ जी, बोलो बेटे। हाँ जी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगानी थी। चलिए, नाउ इस क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4 करेंगे, 3 नहीं 4 करेंगे, फर्स्ट 3 आप होमवर्क में करोगे, बिकॉज इफ यू विल नॉट ट्राई आपको नहीं आएगा, सो वंस यू विल ट्राई एंड देन आफ्टर दैट, एक बार मैं आपको शो कर देती हूँ। ये देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ एक्सटीरियर एंगल बना हुआ है, ठीक है 120, यहां से आप x फाइंड कर सकते हो, यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स, 120 है, x कितना होगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाइए, व्हाट विल बी मेजर ऑफ x, यस 130 नहीं होगा बेटे, यस सहजवीर इज राइट, इट विल बी 70, ये 70 होगा, ठीक है, ओके, अब ये 70 मिल गया आपको, ये 50 है, अब सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल लगा दो, ये 50 ये 70 ये 120 हो गया, और 120 प्लस क्या करोगे कि 180 बन जाए, y कितना आना चाहिए, यस वेरी गुड मान्या, वेरी गुड, इट विल बी 60, सेम वे, ये देखो आपने, ये कौन से एंगल है आपको याद है, ये कौन से एंगल्स बन रहे हैं यहाँ पे, यू रिमेम्बर विच एंगल्स आर दीज, किसी को याद है, यस वर्टिकली ऑपोजिट, ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो ये भी कितना हो जाएगा 80, अब ये 80 ये 50 कितना हो गया 130, पूरा टोटल एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करो, कितना होना चाहिए 180, 130 ये दोनों है, तो रिमेनिंग इज यस 50, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड त्रिशा। नेक्स्ट यहाँ देखो, इस क्वेश्चन में ये 60 और ये 50, 60-50, अब ये y कितना होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, व्हाट विल बी y, y ये 110, यस मान्या गुड, दिस इज 70, और अब इससे लीनियर पेयर बना लो या एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा लो, बाहर का एंगल कितना होगा, इन दोनों को प्लस करो, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाओ, बाहर का एंगल जो x है वो होगा 110, वेरी गुड, यू आर राइटिंग राइट आंसर्स, सो दीस 3 क्वेश्चंस यू विल डू योरसेल्फ, ओके, now is part 4, okay, stop writing now, okay, now is part 4, अब इस पार्ट 4 में आपको इस तरह से ट्रायंगल गिवन है और इसकी साइड्स एक्सटेंडेड है, दिस इज y, क्या
here angle is x, this is 30 and this angle is 60. So you have to find x and y. x और y फाइंड करने हैं. कैसे करोगे? अब देखो x, ये दोनों क्या बना रहे हैं? x और ये, these are vertically opposite. We know, इसको मैं 1 मार्क कर रही हूँ, इसको 2 मार्क कर रही हूँ. एंगल 1 is equal to angle 2 by, because these are vertically opposite angles. अब ये vertically opposite angles हैं. ओके, ये वर्टिकल ऑपोजिट बन गए, तो इन दोनों का मेजर सेम होगा. जितना ये 2 है उतना ही ये 1 होगा. दैट मींस x का मेजर क्या आ जाएगा? 60 डिग्री. अब x आपको 60 मिल गया. ठीक है, अब ये पता लग गया 60 है, ये 30 है, तो y मिल जाएगा क्योंकि हम यहाँ एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे. वी नो फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का, दिस इज सेकंड पार्ट. सम ऑफ एंगल्स of a triangle is equal to 180 degrees. Okay, ये 180 है. अब तीनों प्लस कर लो. 30 plus 60 plus y should be 180. अब इन दोनों को ऐड करिए. 90 plus y should be 180. शिफ्टिंग करवा दीजिए 90 की, so it will be 90 degrees. y आ जाएगा 90 डिग्रीज. इज इट क्लियर? पहले यहाँ पे आपने वर्टिकल ऑपोजिट लगाया, ये मेजर 60 था, इसके साथ वाला जो सामने एंगल है वो भी 60 होगा. यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल गई 60. अब इस एंगल सम प्रॉपर्टी के लिए आपको तीनों एंगल्स का सम 180 चाहिए. ये 60 है, ये 30 है, जो y है वो कैसे मिलेगा? जब आप 30 और 60 की शिफ्टिंग करवा दोगे. 90 मैंने शिफ्ट करवा दिया, आई गॉट दिस एंगल y एज 90 now. ये एंगल y कितना आ गया? 90. Okay. Next question. Part 5. अब इस क्वेश्चन में देखो, पहले तो हम वर्टिकल ऑपोजिट यूज कर लेते हैं, उससे हमें y की वैल्यू मिल जाएगी. ये जो दोनों एंगल्स है ये वर्टिकल ऑपोजिट है. सो आई विल गेट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y. यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स व्हाट विल बी y. y कितना होगा? यस, वेरी गुड मान्या, गुड, वेरी गुड अक्षरा, गुड अवनी, यस, एंड मनवीर, रितिका, त्रिशा, वेरी गुड. ओके, स्टॉप राइटिंग नाउ. वेरी गुड जैमित. सो y आपके पास आ जाएगा 90. मैं इसको 1 और 2 नाम भी कर सकती हूँ और डायरेक्टली भी लिख सकती हूँ. ओके, हियर angle 1 is equal to angle 2. Why? Because these are vertically opposite angles. अगर ये vertical opposite दोनों इक्वल होंगे, that means 190 है, तो 2 भी कितना होगा? 90. आपके पास 2 का मेजर है. First part. Now is part 2. Part 2 में आप angle sum property का यूज करोगे. What is angle sum property? Angle sum property says that सारे एंगल्स को जब आप एड अप कर दोगे, so what answer will you get? You will get 120. Okay रितिका, स्टॉप राइटिंग बेटे. आपकी रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड हो जाएगा तो नीचे ब्लैक बोर्ड नहीं दिखाई देगा. सो स्टॉप राइटिंग नाउ. ओके, यस. सो अब आप यहाँ एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करिए. वी नो सम ऑफ एंगल्स of a triangle is equal to 180 degrees. 180 होते हैं, तीनों एंगल्स को ऐड कर दीजिए. x plus y is 180
इसमें से आप y फाइंड कर चुके हो, दैट इज 90, रिमेनिंग है x और x, तो 90 को शिफ्ट कर दीजिए, 1x and 1x will be 2x, 90 आपने शिफ्ट कर दिया, माइनस हो जाएगा, so you are getting 2x is equal to 90, 2x 90 है, अगर 2x 90 है, that means 2 की शिफ्टिंग करवाइए, x is equal to 45, ये भी 45 का और ये भी 45 का है, तीनों को ऐड करके देख लो, it will be 180, 45 45 90 90 plus 90 180 degrees. Is it clear? क्लियर है बेटे सबको? इसमें आपने वर्टिकल ऑपोजिट भी यूज किया और इसमें आपने एंगल सम प्रॉपर्टी भी यूज की. Be quick. After this we will be starting, try these of page 122 and tomorrow we will complete try these of 123 also. और 23 भी हो जाएगा, 4 एक्सरसाइजेस हो जाएंगी आपकी इस वीक में. Hurry up. So there is a last part. Question 2 part 6. यहाँ आपको y given है, this is given as x, this is also given as x and this is also given as x. बाहर के जो एंगल्स हैं वो x given है, ओके? Have you completed this question? कोई इसको कर रहा है तो हैंड रेज करो, अदरवाइज यू विल मूव फॉरवर्ड. हैंड रेज करिए, कोई लिख रहा है तो. ओके चिन्मय, बी क्विक, जल्दी करो बेटा. ओके, आई थिंक सबने कर लिया होगा. नाउ फोकस ऑन दिस पार्ट. थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफरेंट इसलिए क्योंकि मेजर किसी का भी गिवन नहीं है. सो व्हाट यू विल डू, आप इस क्वेश्चन में यहाँ देखिए x लिखा है, ठीक है? अगर मैं इसको 1 नेम दे दूँ, इसको 2 नेम दे दे, इसको 3 दे दे, ओके? तो ये इसके साथ नीचे एंगल बन रहा है, ये दोनों कौन से एंगल्स हैं? वर्टिकल ऑपोजिट है, ओके? इसको मैं नेम दे दूँ 4. तो एंगल 1 और 4 दोनों इक्वल होंगे, दैट मींस ये दोनों कितने मेजर किए हैं? अगर ये x है तो ये भी कितना होगा? x, ओके? अब 2 देखो, यहाँ मैंने लिखे 5, 2 और 5 में
y की जगह x लिख सकते हो। ओके, तो इस y की जगह हम लिख देते हैं x। दैट मींस 3 और 6 भी इक्वल होंगे, तो मैं इस 6 को लिख रही हूं x। ओके, सो यूजिंग vertically opposite angles, we got what we got? Angle 1 is equal to 4, angle 2 is equal to angle 5, and angle 3 is equal to angle 6. 1 4 के इक्वल होगा, 2 5 के इक्वल होगा और 3 6 के इक्वल होगा। ये जो 1 है उसका मेजर कितना आ जाएगा? इसका x आ जाएगा। That means angle 4 is x now, angle 5 is also x now, and angle 6 is also x now. अब ये जो 4, 5 और 6 है ये इंटीरियर एंगल्स है एक ट्राइंगल के। इन तीनों का मेजर आपको मिल गया x, x और x। ओके, यूजिंग angle sum property, एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या होगा? इन तीनों एंगल्स का मेजर 4 plus 5 plus 6 will be 180 degree. 4 is x, 5 is also x, and 6 is also x. now आपने तीनों निकाले, तीनों ही x हैं। now this is 1x, 1x and 1x. that means 3x is equal to 180. now you can shift this 3 and you get 180 by 3, that means x is equal to 60 degrees. अब आपके पास जो x है वो 60 आ गया। मेन जो पॉइंट था वो क्वेश्चन का यही था कि तीनों को वर्टिकल ऑपोजिट एंगल यूज करके x, x और x लिख लो, उस एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करो, तीनों को एड अप कर दो, x plus x plus x 180 हो जाएगा और आपको मिल गया कि x 60 है। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि y और x दोनों इक्वल है, तो y is also 60 degree. Y भी 60 होगा, x भी 60 होगा। Each angle will measure 60 degree now. Is it clear?